Okay, uh, good morning, all of. So yesterday we have entered the exam, and hope everybody did well. No, समझते अच्छा हुआ कि नहीं सब लोगों का? Yes, sir. कुछ नहीं था एग्जाम में, है कि नहीं? हाँ, ट्रायल टेस्ट था. Good morning, ठीक है, sir. तो वी आर. गुड मॉर्निंग संतोष. अभी आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन फॉर यू पीपल. So then we'll know. Few things are left for this module, and we'll start the new module. Okay. So ये तुम लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ? Yes, sir. Screen is visible? Yes, Yes. sir. Okay. Yes, So sir, दिखाई दे yesterday रहा. we are discussing. हाँ. So last one I am discussing about what? Last class? Resonance. क्या? Yes, it is resonance. That is electrical resonance, right? So what is the condition for resonance? Anyone? Sir, X equal to XL. Xc Then is equal to Xc. So when the inductive reactance is equal to capacitive reactance, reactance. then there will be the circuit will behave as a the circuit will behave as a Resistive circuit. resistive circuit. The circuit is going to behave as a resistive circuit, and the frequency. Suppose I am going to ask you, what is the frequency of resonance? कितना आएगा? Frequency of One resonance. by 1 by 2 2 pi pi under root root over of 2. LC. Yes, very good. 1 LC. by 2 pi root over LC. Suppose if I will ask you, find the, suppose a circuit is given, whose inductance is given. देखो ये प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे. ये यहाँ पे LC सर्किट दे दिया है यहाँ पे. और वो बोल रहा है व्हाट इज फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. Right? So what you will do? You will put the formula. That formula is our, what is that? Formula is 1 by root 2 pi root over LC. So we can get this frequency. If you will set the wave at this frequency, then there will be definitely a resonance. Okay. So ये resonance जब होता है तो what is the, क्या क्या होता है? What happens in the circuit? We'll be knowing that within a minute. Just a minute. Uh, Just I'm getting that thing right here. Yes. Yes. Yesterday we were discussing this. So resistance is there. So the circuit is resistive circuit in this case. And what happens? Suppose I will ask you, what is the whether impedance this Z is maximum or minimum? Maximum. Z, Maximum. सोचो. Z is, look at it. Here I am writing. Z is equal to R square plus क्या होता था? प्लस क्या होता था? X XL का plus स्क्वायर होता था कि नहीं? अभी क्या हुआ? ये जीरो हो गया. तो Z is equal to क्या हुआ? सर मिनिमम हो जाएगा ये. हाँ, R sir. तो ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? यहाँ पे वो जोड़ा होके आता था. इट इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स. नाउ द एक्स इज रिमूव्ड, सो नाउ इट इज आर. सो द सर्किट इज, योर इम्पिडेंस इज मिनिमम. Minimum. करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? पहले करंट क्या था? Maximum. करंट क्या था? V इज इक्वल V बाई जेड था कि नहीं? जेड मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर था, रूट ओवर एक्स एक्स. ये एक्सएल नहीं, एक्स. सॉरी. तो अभी क्या हुआ? ये कट गया. तो अभी I इज इक्वल टू V बाई VR. R. So current will be maximum or minimum, because डिनोमिनेटर इज ज्यादा था तो करंट कम था. अभी डिनोमिनेटर क्या हो गया? कम हो गया. तो करंट विल बी Maximum. क्या? Maximum. Right? So some of the few things I am going to tell you here. Look at it. When the circuit has resonance,
which circuit? RLC circuit has resonance condition. What will happen? Your XL minus XC circuit is 0. ठीक है. और हमने अभी क्या बात की है? We have discussed that impedance of the circuit is minimum. ठीक है. Impedance is minimum. Impedance का यूनिट क्या है? Ohm. So, if I will ask you, what is the reciprocate of impedance? 1 by Z का मतलब क्या है? 1 by Z is Power known factor. as your Y. Okay, and it is known as your admittance. What is that? It is admittance, and its unit is known as your ulta. M H Mho. मो. जैसे तुम लोग का रेजिस्टेंस का 1 बाय क्या है? क्या है? Ohm, sir. कंडक्टेंस. क्या है? कंडक्टेंस. क्या है? कंडक्टेंस. Conductance. कंडक्टेंस. राइट. तो यहाँ भी वो इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल क्या है? एडमिटेंस. सो ये मिनिमम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? Maximum. क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा. करंट इज Minimum. Yes. करंट इज अभी Maximum. डिस्कशन किए ना. करंट इज Maximum, sir. Maximum. मैक्सिमम. पावर इज पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम. क्योंकि Maximum, sir. सर्किट में ओनली रेजिस्टिव सर्किट है कि नहीं? Yes. पावर फैक्टर इज 1 because it is resistive circuit. That's why the power factor is 1. Understood? Cos phi is 1. And in that resonance circuit, what happens? Your this is equal to 1. ठीक है. ये कैसा है? 1 है. XL is equal to XC. होने से इसको एक तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1. कैसे दिखा दे रहे? ये है कितना? 2 पाई FC है कि नहीं? 2 पाई FL बाई ये कितना है? 1 बाई कितना है ये? 2 2 pi पाई FC. 2 pi FC. FC. तो इस तरफ लेने से क्या हो रहा है? ये 4 पाई मीन्स 4 पाई F F square C square. F स्क्वायर क्या? L C. C. ये 4 पाई F L C इज इक्वल टू 1. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं? यस और नो? व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई एफ एल है कि नहीं? ओमेगा उसका स्क्वायर क्या आ रहा है? वही आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टूड? Okay, so resonance at resonance condition, this will omega square LC is equal to 1. Right? So same thing is given in that, and these are the things. And next things resonance में क्या होता है? देखो resonance curve means क्या यहाँ पे दिखाया गया है वो क्या होता है. हाँ, if your this is your frequency, resonance frequency, right? So at resonance frequency, the value of R change होगा. If you change the value of R with frequency, you will get a curve like this. Okay, right? So next we'll be going and reading some part that is known as your series and parallel RLC. तुम लोग series RLC पढ़े हो कि नहीं? Just we have studied series RLC. So now we'll see what is your parallel RLC circuit. ठीक है. एक दो प्रॉब्लम उसमें कर देंगे पैरेलल RLC में. 3-4 बार पढ़ने से वो चीज दिमाग में घुसता है. ठीक है ना? है कि नहीं? यहाँ पे और क्या है? और ये देखते हैं और कुछ क्वेश्चन. हाँ, ये वाला देख लेते हैं. In a series RLC circuit at resonance,
ठीक है, द magnitude developed across the magnitude of voltage developed across the capacitor क्या होगा? क्या होगा? यहाँ में आंसर भी दिया हुआ है, आंसर कहाँ दिया? D. आंसर नहीं दिया, क्या होगा? क्या पूछा है? RLC circuit has a resonance. The magnitude of a voltage developed across the capacitor. Hmm? इसमें आए हैं, गेट सर क्वेश्चन में आए हैं, गेट B हो सकता है सर। will never be greater than the input इनपुट voltage. ठीक है, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे अभी? क्या? पैरेलल ऐसे सर्किट। पैरेलल आरएलसी सर्किट मतलब क्या है उसका? दो आरएलसी सर्किट को हम पैरेलल लगा रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड? तो इसका जस्ट फंडामेंटल हम पढ़े। देखो क्या कौन सा मेथड में इसको सॉल्व करते हैं? देयर आर टू मेथड्स, वन इज योर वेक्टर फेजर मेथड, अनदर इज अलजेब्रिक में क्या कौन सा मेथड? एडमिटेंस मेथड, एंड थर्ड वन इज योर अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पे क्या किया है? पहला वेक्टर मेथड में लिया, तो दो आरएलसी सर्किट हम ले रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज ए व्हाट सर्किट? आर एंड और एल, दिस इज RC। आरसी। तो वो दोनों कैसे लगे हुए हैं? दे आर इन सीरीज। पैरेलल, दे आर इन पैरेलल, राइट? सो लुक एट, ठीक है, सो दिस voltages आर सेम और नॉट डिफरेंट एट दिस पॉइंट? सेम और डिफरेंट? Same. Same, because in parallel circuit voltage is same, current differs, right? Okay, clear? So अभी उसको सॉल्व करेंगे। पहला हम ब्रांच को ले लेंगे, ब्रांच ए, दिस इज योर ब्रांच ए। सो व्हाट इज योर जेड इन ब्रांच ए? Z1 क्या होगा? Z1 क्या होगा? वहां पे आर है तो आर स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस XL S स्क्वायर square. अंडर रूट। एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल है तो एक्सएल स्क्वायर आ गया, खत्म। यहीं पे आई क्या होगा? द करंट आई इज फ्लोइंग दैट, सो आई इज इक्वल टू वी बाई V अपन R। बी Z अपन वी अपन R जेड Z। वन, जेड वन। ये टोटल हो गया जेड वन ना, कि नहीं? यस सर। ये हो गया जेड वन। तो यहाँ पे करंट हमारा आई वन जा रहा है, तो आई वन इज इक्वल टू वी बाई जेड। अब मैं पूछूंगा भाई उसका पावर फैक्टर कितना होगा? हम जानते हैं क्या, कॉस पाई इज इक्वल टू 1 सर। क्या? आर Z. बाई Add by आर बाई Z. जेड वन, आर बाई जेड वन। आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर वन बाई, मान लो ये आर वन दे दिया, हाँ? इसको आर वन दे दिया, इसको आर टू दे दिया, तो क्या होगा? ये आर वन बाई जेड वन। ओके, अंडरस्टूड? एंड यहाँ पे करंट क्या होगा? लैगिंग या लीडिंग? क्या? Leads. लैगिंग सर। क्यों? Lags. Why? टैगिंग। Lag. Inductance Inductance. Yes, it is a inductive circuit. L is there, that's why it is lagging. Okay, that's why current is lag the voltage by an angle phi. Similarly, we'll come to which one? Branch 2. Branch 2 में Z2 है ये, ठीक है, और हम इसको क्या लिखेंगे? R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर I2 कैसे मिलेगा? V बाई Z2 एंड मिल गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो करंट मिल गया, क्या कौन सा करंट? I1 एंड I2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वो रिजल्टेंट करंट निकालेंगे कि नहीं? अंडरस्टूड? यस यस। तो हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम करा। क्या करेंगे हम फेजर डायग्राम में? द वोल्टेज इज व्हाट? कांस्टेंट। कांस्टेंट एंड सेम इन बोथ। सो पहला हम लिखा लेंगे यहाँ
I1, तो दिस इज योर I1। तो I1 वोल्टेज से कितना लैगिंग है, कितना है, कितना है? I1 plus Plus I I. plus phi 1. अरे रे, I1 cos देखो phi। देखो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, फेजर सर डायग्राम कर रहा I1 हूँ। cos phi। अरे मैं फेजर डायग्राम काट रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को स्क्रीन? yes, हाँ, sir. Yes sir. रेफरेंस में मैंने V लिखा है, और मेरा यहाँ पे जो I में ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो I ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे? I I1 लैगिंग नीचे lagging. किया और I1 ड्रॉ कर दिया, खत्म। Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes sir. अब मैं I2 ड्रॉ करूंगा तो क्या करूंगा? I2 क्या है? V से Lead करते हैं. लीड है कि नहीं, क्या है? Lead. तुम लोग Lead सो है, गए sir. हो सुबह सुबह? हाँ, तुम लोग के लिए टाटा चाय भेजना पड़ेगा क्या? घर में बोल दे तुम लोग का सबको फोन करके। No, sir. पी लिया है। नो। तो टेल मी व्हाट इज दैट? वोल्टेज से I2 कितना होगा लीडिंग? Height लीडिंग to angle हाई। I alpha, 2. I2. अब रिजल्टेंट निकाल देंगे इन दोनों का, ठीक है ना? राइट, तो टोटल क्या हुआ? Φ1 प्लस Φ2 एंगल, ठीक है sir. नहीं? Yes, sir. तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? सच में? Sir, कंपोनेंट्स जो लेंगे हाँ, सर। अरे सच में? Parallelogram. यस, अब ये थोड़ा जगह कौन सा फॉर्मूला है? तो जिसमें फेस आता है वही वाला। हाँ, पैरेललोग्राम। नहीं तो तुम लोग ऐसे भी करना कि इसका कंपोनेंट जोड़ देना है, डिफरेंट रिजोल्यूशन कर देना है, ठीक है ना? एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को रिजोल्व कर देना है, ठीक है ना? देखो, रिजॉल्विंग क्या पैरेललोग्राम डाल सकते हो, ठीक है? नहीं तो क्या कर सकते हो? एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को रिजॉल्व कर सकते हो। और थर्ड मेथड क्या कर सकते हैं हम? तो पहले देखो वो क्या किया, एक्टिव कंपोनेंट कर दिया। तो ये जो क्या किया, पहले I1 का यहां से निकाल दिया एक्टिव कंपोनेंट, क्या हो गया? I cos Φ1 प्लस I2 cos 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 Φ2। theta. तो साइन वाला कंपोनेंट कैसे आएगा? ऐसे और ऐसे आएगा, इसीलिए वो क्या किया है, माइनस किया है, देख रहे हो? ठीक है, Yes, sir. राइट। तो फाइनली द रिजल्टेंट ऑफ I इज इक्वल टू क्या, दिस क्या होगा? दिस कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर एंड वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, Root ठीक of. है, रूट ऑफ, ठीक है। और हम जानते हैं टेन इनवर्स बी बाई ए कि नहीं? हाँ, तो Yes, sir. बी हो गया हमारा, ये बी है, ये ए है, ठीक है। इस तरह से ये रिजल्टेंट तुम लोग को आ जाएगा। देखो यहाँ पे वो किया है, देख रहे हो ना? ये क्या होगा? I cos Φ1 प्लस I2 cos Φ2, एक दिशा में है कि नहीं? दोनों। तो Yes, sir. इसलिए क्या किया, जोड़ दिया। और ये क्या है, दोनों अपोजिट दिशा में है तो वो सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे दिया है, देख रहे हो? हाँ, तो इस Yes, sir. मेथड में तुम लोग I को रिजल्टेंट करंट निकाल सकते हो। कहाँ पे? कौन सा? पैरेलल किसमें? RL सर्किट में। अरे हाँ, इसमें. पैरेलल आरएल सर्किट में। ये एक मेथड है। क्या करेंगे हम? लैग करेगा या लीड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? लैग करेगा कि लीड करेगा, ये डिपेंड करेगा तुम लोग को। ये फाई में आ जाएगा, ये इसमें 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 पता चलेगा। 10 फाइव। हाँ, 10 फाई सर में अगर फाई पता चलेगा। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा तो लैग करेगा ना सर? कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो लीड करेगा।
सर इंडक्टेंस ज्यादा हो ये तो लैग सुनो करेगा। सुनो, ये सर्किट ये ऊपर वाला है क्या, लैगिंग, आरएल सर्किट। ये यस नीचे सर। वाला है आरसी लीडिंग। लीडिंग। हाँ ठीक है ना, तो ये लैगिंग है ये लीडिंग है। अब ये ज्यादा होगा तो यहाँ जो करंट आएगा, हाँ ये लैग करते जाएगा, ये लीड करते जाएगा। अगर लीड ज्यादा होगा तो करंट को थोड़ा लीड मिलेगा कि नहीं, समझ रहे हो। यस मान सर। लो नो सर, काफी। ये लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, अब दोनों अंदर घुसे कि नहीं, दोनों करंट अंदर घुसे, ये करंट लैग में जा रहा है ये लीड में जा रहा है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट करंट अगर ज्यादा लीड में है तो वो लीड में रखेगा, नहीं तो ज्यादा लैग में है तो क्या करेगा, उसको लैग में लैग रखेगा, लैग करेगा। लैग करेगा। देखो यहाँ पे दिया है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन देख रहे हो क्या दिया है, रेड में हम लिख रहे हैं, इफ 10 phi इज पॉजिटिव, ठीक है ना, देन द करेंट यस सर। क्या, लीड्स। लीड, लीड्स। लीड। इफ 10 phi is negative, then the current, करंट लैग्स। इसमें पता चल जाएगा हम। तो ये कौन सा मेथड हमने बोला अभी, अब तुम लोग को पैरेलल मेथड सर्किट। हमने बोला वेक्टर मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड इज यू कैन फाइंड आउट इन एडमिटेंस मेथड, ठीक है। तो मैं उसको पहले एडमिटेंस क्या है तुम लोग को बता दे, जेड एडमिटेंस क्या है, व्हाट इज एडमिटेंस, Reciprocal of impedance. रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को आई बाय भी वी। भी जेड। आई बाई भी। भी, ओके। आई बाय एंड भी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल वाई इज इक्वल टू, हम ऐसे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखे हम, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, जी स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे जी क्या है, जी इज नोन एज योर कंडक्टेंस, G is known as your conductance, means 1 by resistive आर एम है तो Similarly 1 by x, तो हमने क्या लिखा, B, right, 1 by x means 1 by reactance or susceptance, लिखा है वो 1 by this unit of this, क्या, y is known as your mho और it is known as your Siemens, क्या है, Siemens, ठीक है, Siemens, and it is can be written as conductance, और ये क्या है, क्या है, susceptance, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम। सो अब हम क्या लिखेंगे, y को क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, बोलो, G square plus B square. yes, g square plus b square, where g square is known as your conductance and b is known as your, b is known as your, Susceptance. okay, okay, capacitive susceptance means वहां पे हमने क्या बोला था, कैपेसिटिव, रिएक्टेंस। क्या बोले थे, रिएक्टेंस, और इंडक्टिव, Inductive reactance. क्या बोले थे, हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, Capacitive यहाँ पे बोले susceptance. कैपेसिटिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव, हाँ, इंडक्टिव ससेप्टेंस, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स, इज पॉजिटिव, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लिख, मैं देखो
ये जो हमारा आर था उसको हमने जी कर दिया है, G1, यहाँ पे इसको कर देंगे B1, ऐसे इसको G2, इसको B2। नाउ यू फाइनली कर, ये टोटल कंडक्टेंस इज योर G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू Gn। टोटल सब्सिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, जहां पे इंडक्टेंस रहेगा वहां पे क्या रहेगा, B माइनस, मीन्स ये क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव ससेप्टेंस। यहाँ पे लिखा है Acceptance. इंडक्टिव ससेप्टेंस इज ऑलवेज Negative. नेगेटिव, कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज पॉजिटिव। इसलिए वो क्या किया, यहाँ पे सर्किट में क्या किया, G1 क्या लिखेंगे, G1 G1 माइनस, G1, ठीक है, देखो G1 माइनस B1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कैपेसिटेंस है। डोंट कंफ्यूज, मैं तुम लोग को दोनों का कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। अगर मैं Z लिख रहा हूं तो क्या लिखेंगे, Z R1 R प्लस क्या लिखते थे, JXL लिखते थे कि नहीं, Yes. अब मैं क्या लिख रहा हूँ, Y लिख रहा हूँ, तो Y क्या लिखेंगे हम, ये क्या हुआ, G. अंडरस्टूड, ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसे में तुम लोग को कैपेसिटेंस क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कैपेसिटेंस का क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे कि नहीं, हाँ? अब Y लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, G plus. G प्लस, हाँ, तो ये सर जी प्लस होगा। जी जी जी, सॉरी, समझ रहे हो, अंडरस्टूड, ये दोनों कंपैरिजन है, राइट। तो जब 1 बाय हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लस, तो इसी हिसाब से ये क्या हुआ, G माइनस, ये क्या हुआ, G माइनस माइनस, ये क्या होगा, G G प्लस प्लस। अब मैं बोलूंगा भाई टोटल कंडक्टेंस को निकालो, तो क्या करोगे, जितना G1 G2 G3 है सबको क्या करेंगे हम, बता दिए, ठीक है कि नहीं। अब मैं बोलूंगा टोटल सब्सिस्टेंस निकालो, ये क्यों किया, -V1, ये हो गया -V2, ये क्या हुआ, प्लस प्लस V3, B3 सबको मिला दिए, खत्म। अब मैं बोलूंगा भाई टोटल एडमिटेंस निकालो, तो क्या करेंगे, Y इज इक्वल टू बी G स्क्वायर, जी square plus स्क्वायर 4 प्लस plus B square खत्म, का root over. खत्म, टोटल खत्म हो गया कि नहीं। तो ऐसे इन पैरेलल सर्किट में हम निकालते हैं, समझ रहे हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मेरा एक रेजिस्टिव सर्किट है, ये एक इंडक्टिव सर्किट, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पैरेलल कर दे रहा हूं और एक रेजिस्टेंस सर्किट से और ये कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है, राइट, और ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 8 और ये हो गया 9, इसका वैल्यू G1 है, ये G1, ये B1, ये क्या हुआ, ये G2, ये हो गया B2, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भाई इस सर्किट का तुम लोग नेट इन एडमिटेंस निकालो, क्या करोगे, क्या करोगे, 5 प्लस 5 plus 8 का whole 8 स्क्वायर 7 नहीं? minus 9 का whole प्लस 7 minus 9 का होल स्क्वायर। 7 माइनस माइनस 9, 9 माइनस 7, 9 पहुंचोगे कि नहीं, 9 माइनस 7 7 का खत्म, आ गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया कितना, 14 ना, 13 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 स्क्वायर, राइट और नॉट, आ गया हमारा वैल्यू, यस और नो। अगर कोई पूछेगा भाई पावर फैक्टर कितना है, कितना, G/Y,
वहां पे पावर फैक्टर क्या था? आई इज इक्वल टू आर बाई जेड था कि नहीं? Yes, sir. हाँ? Yes. तो यहाँ पे आर को रिप्लेस कौन किया? G. जी। और वाई को रिप्लेस किया, ये जेड को रिप्लेस किया Y. वाई। Why? हो गया। दिस इज ऑल अबाउट योर पैरेलल सर्किट एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्या? Admittance. एडमिटेंस। दिस इज ऑल अबाउट योर और क्या? Sick. बोलो तुम लोग कुछ। ऑल अबाउट योर दिखाई दे रहे, दिखा दे ऑल अबाउट योर क्या? Module 1. मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है? हाँ, दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, थोड़ा उसका व्यू बढ़ा करके 100% नहीं, कितना करेंगे हम? 150, 200, 200 बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, चलेगा फिर। ज्यादा हो गया, ठीक है, अभी ठीक है ना? क्या हमने पढ़ा? सर्किट फंडामेंटल्स पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़े, किरचॉफ्स लॉ पढ़े, सीरीज पैरेलल पढ़े कि नहीं? हाँ, एनालिसिस पढ़े, नोड एनालिसिस, मेश एनालिसिस, सुपरपोजिशन पढ़े, नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर सिंगल पेज जनरेशन पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन, क्या? एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू मींस आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, हाँ, जे ऑपरेटर, रेक्टेंगुलर, पोलर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर एनालिसिस, आरएलसी, आरसी, आरएलसी, सीरीज पैरेलल, खत्म। तो मेरे तरफ से तो खत्म हो गया है। तुम लोग को अगर कुछ डाउट है, यू जस्ट टेल मी, राइट? अंडरस्टूड? तुम लोग को इसमें जो भी डाउट है, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क सो दैट वी विल सॉल्व इट। नेक्स्ट विल बी रीडिंग व्हिच वन? दिस मॉड्यूल 3। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 व्हाट इज दैट? क्या है? Magnetic. तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेट। टेल मी। To generate power. वन। सर हाँ, बोल रहा था सर, मॉड्यूल 3 का नोट जो है ये सर पीडीएफ में भी है ना, आप जो ग्रुप में दिया है? हाँ। अच्छा अच्छा सर, ओके सर। तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताओ। 1 हो गया, वी जनरेट एनर्जी। नेक्स्ट। और कोई? थे मेला लगा था कॉइल से करंट फिर चेंज करें। क्या? एनीवन? और क्या है? अरे कल बहुत ज्यादा बड़ा मेला लगा हुआ था कि नहीं? यस सर। कल हम न्योता भेजे थे, सब लोग आके खाए। आज कम हो गया, 38 पीपल आए थे। कल 50 के वो आए थे। कोविड का प्रोटोकॉल लग गया कल, इतना जन आके हैं। क्या सही है कि नहीं? 50 जन आएंगे तो कोरोना हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. लगता है सर सब लोग सो रहा है अभी। सब समझदार है, सब घर में रहता है। समझदार लोगों का इशारा ही काफी था कि नहीं। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ। whenever current flowing in a circuit there will be two effect, yes or no? Electrostatic and Magnetic. Magnetic. So with this magnet, we what is the importance of magnet? बहुत है, and आने वाला दिन में भी बहुत magnet का importance है, right? So magnet is used for generation of power, right? And To मोटरिंग, store data. मोटर, हाँ, तो मोटर, अगर मोटर चल रहा है मीन्स वहां पे भी मैग्नेट है। ठीक है, बिकॉज हमने पढ़ा है विच लॉ? फ्लेमिंग्स लॉ, राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है कि नहीं? तो लेफ्ट रोटेटिंग करने में सारे मशीन में मैग्नेट होते हैं ना। हाँ, तो क्या होता है मशीन में? द थिंग इज व्हेनेवर ए कॉइल रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट जनरेट्स पावर, है कि नहीं? Same thing, whenever a coil carries current, whenever a current carrying
कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा, क्या होगा, अरे वो रोटेट करेगा। समझ रहे हो, दो चीज हम बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तुम लोग एक कॉइल लेके उसमें घुमाओगे तो क्या होगा, पावर जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब से मैग्नेट को कांस्टेंट रखो, वो कॉइल में करंट दो, तो वो ठीक है, घूमेगा सर। तो घूमेगा, तो मैग्नेट ठीक है ना। तो ये Yes, चीज है, ये चीज है। और ट्रांसफार्मर में भी मैग्नेटिक सर्किट है, क्योंकि वो पावर को क्या करता है, पावर वो वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है, तो दैट इज देयर आल्सो यूज। और हमारा मैग्नेट कहाँ पे, और मेमोरी में भी है, मैग्नेटिक मेमोरी, राइट, वो स्टोर करता है, तुम लोग का डाटा वाटा स्टोर होता है ना, वहीं पे भी है। तो हर जगह इस मैग्नेटिक फील्ड कि नहीं, एड का मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, म्यूट कर दिए। उसका सब बंद करो अपना थी। ठीक है, ज्यादा हो गया उसको क्लास, है कि नहीं, कौन बात कर रहा है, सुबह सुबह ज्ञान ज्यादा हो गया कि नहीं रे, ओके, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक सर्किट अब पढ़ेंगे, राइट। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सर्किट में बहुत सारा चीज है, एमएमएफ है, फ्लक्स है, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस, और ये जो लॉ तुम लोग जानते हो, ये दोनों लॉ को, ये दोनों जानते हो? Yes. Yes, ये Lord दोनों, God, Sabbath law. ये चाचा और भतीजा Yes. लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक का, ठीक है। और यहाँ पे वही भी सीरीज और मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, क्लियर। सो दिस इज योर सेकंड थर्ड मॉड्यूल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आई एम जस्ट शोइंग द थिंग्स टू यू, यहीं पे होगा शायद, जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ बोलो। सर बोल रहे ना कि सर कल से सर ये वाला मॉड्यूल चालू कीजिएगा, फर्स्ट वाला कुछ फर्स्ट वाला रिवाइज करा दीजिए। रिवाइज तो हम मारेंगे, तुम लोग खुद से पढ़ो, हम साइकिल चलाने से क्या होगा, तुम लोग साइकिल चलाओ, कहीं पे रुक रहे हो तो बताओ, ठीक है। रिवीजन मारने के लिए क्या है, हम मार देंगे, उसमें कुछ फायदा नहीं है, तुम लोग जब तक उसमें नहीं उतरे, ठीक है ना, पानी में, यस सर। तो उसका फायदा नहीं है। रिवीजन का क्या है, मैं ऐसे एक एक चीज को बोल बोल के चला जाऊं, फायदा कुछ है क्या उसमें, वो करेंगे बड़ी, ठीक है ना, ओके सर। उसका टेंशन मत लो। अब भी तुम खुद बताओगे तो तुम्हारा भी एक बार रिवीजन कर देंगे, ठीक है ना, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग फिर से वही बात हो गया, राम कहानी हम बताएंगे, उसमें कुछ नहीं पता चलेगा, रामायण सीरियल जैसा लगेगा, है कि नहीं। लॉकडाउन में देखे थे कि नहीं, पहला लॉकडाउन में, हैं? यस सर, वही चलता था। रामायण जैसे नहीं लगा, यस। यहाँ पे द थिंग इज मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मीन्स क्या है, जो हमको नेचर में मिलता है वो है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, सर इलेक्ट्रिसिटी से बनाते हैं। हाँ, को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉइल को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बड़ा बड़ा मैग्नेट हम नहीं बना सकते, सर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो होते हैं। हाँ, तो नहीं रिलेटेड तो है, क्या है कि मैं देखो पावर जनरेशन, आजकल तो बहुत पावर जनरेशन चाहिए, क्योंकि हर कोई, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो पावर जनरेशन ज्यादा चाहिए कि नहीं, पावर सबको चाहिए कि नहीं, बिना पावर में नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या बड़ा बड़ा मैग्नेट चाहिए, तो नेचर में हमको बड़ा मैग्नेट मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसमें सर कॉइल को हम, हाँ
सप्लाई दे के मैग्नेट बना दे। कौन सा मैग्नेट सप्लाई दे, डीसी या एसी? डीसी सर। डीसी सर, क्यों? एसी क्योंकि सर डायरेक्ट करंट चाहिए, उसको कट कर फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। हाँ रेगुलरली चाहिए पावर। यूनिफॉर्म हमें फील्ड चाहिए। एसी देंगे तो क्या होगा, कभी मैग्नेट बनेगा, कभी कभी मैग्नेट नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो हर वक्त मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते डीसी हैं। करंट। डीसी ठीक है, राइट। तो हम आ जाएंगे उसको, हाँ यहाँ पे देखो, ये है पहला चीज जो क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तुम लोग जो पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये क्या पढ़े थे, याद है? यस सर, एप्सिलॉन। क्या है, सर क्या है? परमिबिलिटी उसका नाम। हाँ, वो Permeability is the परमिएबिलिटी। property of यस, medium. परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम, Medium. फ्री स्पेस। और ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी। किस में हम पढ़े थे, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। So whenever the medium offers some dependency on that system, that is known as your electrostatic में हो गया permeability, permittivity। ठीक है ना? तो वो मैग्नेटिज्म में क्या होगा, क्या होगा? Permeability. परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मीन्स मतलब क्या है, मुझे लिटरली बताओ, उसका मतलब क्या है भाई? मेरे, सुन लो, मैं एक मैग्नेटिक, मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल हूँ, ठीक है ना? मैं कितना मैग्नेट को, फ्लक्स को मेरे अंदर छोड़ूंगा, समझ रहे हो? ठीक है, मैं अपने हिसाब से जो मीडियम हूं ना मैं, तो मेरे हिसाब से कितना मैग्नेट फ्लक्स को छोड़ेंगे, उसको बोल रहे हैं हम परमिएबिलिटी। परमिशन दे रहे हैं, परमिशन एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ माई गिविंग परमिशन, दैट इज नोन एज योर परमिएबिलिटी। किसको हम देंगे, किसको? फ्लक्स को सर। फ्लक्स को। में तो मीडियम के अंदर वो कितना फ्लक्स को छोड़ रहा है, ठीक है? तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर डिपेंड्स ऑन सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम कॉल्ड क्या, परमिएबिलिटी। सर अटेंडेंस। एंड ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्या डाल दे, एक मिनट, हाँ, विल मेक इट। सो टू टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी इज देयर, वन इज योर क्या, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एंड अदर इज योर Relative permeability. जैसे वहां पे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी था, परमिटिविटी, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। तो वैसा ही यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इज म्यू जीरो, ठीक है? वहां पे क्या था, कुछ याद है तुम लोग को? 8 पॉइंट कुछ था ना, 8.854 into 10 to the minus 12. 8.834 10 to the power माइनस 10 टू द पावर माइनस 12 था कि नहीं? यस हाँ? सर। हाँ, यहाँ पे वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आ गया कितना, 4 pi इसको into हम 10 याद to रखना। minus 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 7 माइनस 7 मीटर पर हेनरी, ठीक है? ये हो गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 और किसके लिए, फॉर एयर, यार वैक्यूम और एयर के लिए इट इज नोन एज 1, ठीक है? तो हमको ये कैसे मिलता है, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी इज म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर। क्लियर, understood? So this is all about your permeability. Suppose we'll ask you, can you differentiate what permittivity and permeability? So what you will say, क्या बोलोगे? Absolute permittivity is the नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, listen to my question. My question is, can you differentiate between permeability and permittivity?
Hmm? Permittivity in which Static. Electrostatic. Static. electrostatic, and permeability is electromagnetic. Magnetism. Magnetic. समझ रहे हो ना? These are in Seven. R, and here R. it is mu is equal to mu 0 into Mu 0 mu r. Mu r. Mu R. that is the difference. क्योंकि करंट जब जाता है ना तो दो इफेक्ट देता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक स्टैटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में ये है परमिएबिलिटी, जो मीडियम को मैग्नेटिक सर्किट को फ्लक्स को अलाउ करेगा वो परमिएबिलिटी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वो किसको अलाउ करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसको? चार्ज, Electricity. चार्ज, Charge. चार्ज पढ़े कि नहीं? कैपेसिटेंस में चार्ज होता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Sir. ठीक है। तो अब जैसे हम अटेंडेंस भी डाल दे रहे हैं, नहीं तो मुश्किल हो जा रहा है। और तुम लोग के वहाँ पे ठंड कैसा है? सर बहुत हो गया। बहुत ज्यादा है। आसाम बहुत- हाल बेहाल है। बहुत बहुत- अंदर 6 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। एक काम करो, ठंड में का मजा लो, पकौड़ी वकौड़ी तल के खाओ, घर में बोलो। सर आसाम का हाल बेहाल है ठंड का। सर आज हाँ। धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं सर। बढ़िया है, मस्त है, बढ़िया। असम पहाड़ी विटामिन डी पहाड़ी ले लो, जंगली। विटामिन। ज्यादा बिहार में ही ठंडा है। हाँ, तो क्या करें? वो मेरे से बढ़कर जंगली है। तो उड़ीसा आ जाओ। असम को जाएगा सर। असम, अरे बाप रे, असम में बहुत ठंडा होगा। नहीं, और भी जा। प्रीतम सर, प्रीतम भाग रहा घर छोड़ के अपना। हाँ, ठीक है। तो अटेंडेंस सुप्रभात मंडल, अमन, टप्पो, कल आए? अमन आए हो? राइट। हसन राजा, प्रेजेंट सर। अरुण कुमार, प्रेजेंट सर। देन दीपक कुमार बेहरा,